application of potentiometer. Yesterday I have discussed the potentiometer. Here I have just shown the figure of a potentiometer. Potentiometer, what is the potentiometer? It is a means wooden board. देखिए this one is a wooden board. ये wooden board है और इसको मैं enlarge कर देता हूँ थोड़ा सा. Enlarge and there are two primary cell. This one is a primary cell and this one is a primary cell, and it is a three-way key, and it is a galvanometer. And this one is a terminal A. This one is a terminal A which is connected to a battery terminal, positive terminal of battery, and negative terminal of battery is connected to a variable rheostat. And this one is a key. It is a source key. It is a source key. It is a diagram, and here I have already drawn another diagram also here. This one is also a circuit diagram, which we draw on this diagram in a copy and practical file. This one is a point A, and it is connected to a positive terminal. It is a variable rheostat. It is a source key, and it is a terminal. यहाँ पर जैसे हमने ये terminal B यहाँ पर connect किया, ये C से connect कर दिया है. देखिए A terminal. These are the two primary cell. E1 of a EMF of a first cell, and E2 is the EMF of another cell, and it is a three-way key, and it is a galvanometer, and it is a N1 and it is a N2. मीन्स ये जॉकी पॉइंट है. J1 J2 लिख सकते हैं हम इसको. J1 J2 भी हम इसको लिख सकते हैं. ओके, डायग्राम इज क्लियर. First of all, we check the circuit diagram. Means this circuit diagram is correct or not. First of all, we check the circuit diagram. How do we check it? Means for the checking of this circuit diagram, we just close the key. First key 1 means this one key 1 and 3 के बीच में भी close करेंगे, और इस की को तो हमने close कर दिया. K1 की को close कर दिया. That is the key K2. यहाँ पर K2 की हमने ले लेते हैं. इसको चलिए मैं लिख देता हूँ. इसको यहाँ पर K2 की लिख देता हूँ इस जगह पर. That is equal to K2, और नीचे वाली को ले देता हूँ मैं K3. ठीक है. First of all, we press the key K1, then we press the key K2, and we touch the jockey. Jockey, this one is a point jockey. Means यहाँ पर ये jockey point है, इसको हम J लिख देता हूँ. J1, that is a J1, and इसको J1, and touch the J1 at point this one A. A terminal पे हम टच करते हैं. Galvanometer shows deflection in one direction. Yesterday I have already explained this one. Means in a galvanometer there is a zero at the center point. Zero at the center point होता है. Means galvanometer shows the deflection in one direction. And now we touch the point. This is jockey at point C. It shows the deflection in another direction. Another direction में, इस direction में हमारा दिखा रहा है. It means our circuit diagram, this one circuit diagram is, first one is correct. This circuit is called the primary circuit. ये वाला circuit हमारा यहाँ से A, B, R, K1 and C, ये हमारा primary circuit कहलाता है, और ये इस side में जो circuit होता है ये secondary circuit कहलाता है. ठीक है. Next, second point हमारा यहाँ पर आता है. We check this one circuit diagram also, मतलब part of a secondary circuit. Now we open the key K2 and close the key K3. K3 को close करेंगे and touch the jockey at point A. Again galvanometer shows a deflection in one direction, and then we touch the jockey at point C. Then it shows the deflection other direction. It means our circuit diagram is absolutely correct. Clear? Any doubt? In this part, I think there is no doubt. Now, how do we perform this experiment in a laboratory? First of all, we have to write down the readings. Means for a first cell, first we close the key K1, then we close the key K2, and we slide the jockey along this wire. This one is the starting point. A is the starting point. इस A point से इस jockey को इसके along this wire we slide करेंगे, and we will get a point at which galvanometer shows null deflection. Galvanometer shows
नल डिफ्लेक्शन, वहां पर हमारा कैलकुलेटर क्या देगा, नल डिफ्लेक्शन। सपोज दिस पॉइंट इज इक्वल टू n1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, नीचे लिख देता हूं मैं इसे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए n1 दैट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। लिख सकते हैं हमारा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ अ पोटेंशियोमीटर, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ठीक है, ये हमने निकाली। इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू VAN1 एंड इट इज इक्वल टू KL1 एंड हियर VAN1 दैट इज इक्वल टू E1 लिख सकते हैं। उसका रीजन ये है, देयर इज नो करंट, नो रेजिस्टेंस ओवर हियर, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू KL1। इट इज अ फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सिमिलरली नाउ वी ओपन द की K2 एंड क्लोज द की K3। K3 को हम क्लोज करेंगे एंड अगेन वी स्लाइड द jockey along this wire and we will get a point at which galvanometer shows null deflection. Suppose this point is N2. It means potential difference across the length of the wire A and 2 is directly proportional to L2 from the principle of potentiometer, and we can write it VAN2 and it is equal to KL2 हो गया, and again that is also equal to E2, VAN2 that is equal to E2, it is equal to E2 and it is KL2. It is the equation number 2. And now we have to compare the EMF of two primary cells. हमें क्या करना है, compare the EMF of two primary cells. तो यहाँ पर हम simple equation first is divided by second, that is E1 upon E2 and it is equal to L1 over L2। ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है, ये कंपैरिजन आ गया। और इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस भी है बेटा, कि अगर आपको E1 E2 दे रखा है, L1 दे रखा है, तो L2 आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेबोरेटरी में भी इसके लिए हमारा जो ऑब्जर्वेशन टेबल होती है, देखिए हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल में एक हमारा कॉलम होता है सीरियल नंबर का, यहाँ पे हम सीरियल नंबर दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारी लेंथ ऑफ द वायर, देखिए सेल फर्स्ट सेल के लिए लिया, E1 के लिए ले लिया, और यहाँ पर सेल E2 के लिए ले लिया, ठीक है। E2 के लिए लेंथ ऑफ द वायर हम यहाँ पे निकालेंगे L1 और ये L2। तो फर्स्ट रीडिंग आप लेंगे, देखिए इसके लिए फर्स्ट रीडिंग और सेकंड रीडिंग को कैसे आप डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ से आप इसको वेरी कर सकते हैं। तो एक बार इसको आपने कुछ भी वेरिएबल रेजिस्टेंस से आपने अलाउ किया करंट को, तो K1 को क्लोज किया और फिर K2 को क्लोज किया, और K2 को क्लोज करके आपकी L1 की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पर। फिर K2 को क्लोज करके फिर K3 को क्लोज करेंगे, अगेन भी जो कि को स्लाइड करेंगे अलोंग दिस पोटेंशियोमीटर वायर, वी विल गेट अ L2। ये हमें दूसरी रीडिंग में, यहाँ पर हम L1 E1 ओवर E2 दैट इज इक्वल टू L1 ओवर L2, तो यहाँ पर E1 ओवर E2 का रेशियो हमें मिल जाएगा। सिमिलरली वी वेरी द रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, अगेन वी कैन नोट डाउन द अनदर रीडिंग, यहाँ पर रीडिंग ऐसे ही नोट कर लेंगे सिमिलरली, और फिर ये हम निकाल सकते हैं 2 और 3 रीडिंग्स विच आर सफिशिएंट इन दैट केस। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, और हाउ टू वी परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी, ये मेथड है। वन थिंग इंपॉर्टेंट ओवर हियर, व्हेन वी आर ओपनिंग द की K2 मीन्स पहले हम सोर्स बैटरी की को ऑन करेंगे, फिर उसके बाद K2 को करेंगे, और जब ओपन करेंगे तो पहले K2 को छोड़ेंगे, उसके बाद K1 को ओपन करेंगे। ऐसा नहीं है, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि इस K1 को पहले निकाल देंगे, K2 को लगा रहने देंगे, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, इससे इंडक्शन इफेक्ट होता है। ये कल मैंने आपको डिस्कस किया था पिछले वाले क्लास में। ओके, नेक्स्ट सेकेंड हमारा एप्लीकेशन शुरू होगा, that is to determine the internal resistance of cell, to determine the
internal resistance of the cell. देखिए for it is a circuit diagram to determine the internal resistance of the cell. मैं इसे लिख देता हूं यहाँ पर, to determine the internal सर्किट डायग्राम देखिए जब तक आप, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल, now just you see this primary circuit which is remains same, there is no change in a primary circuit, there is no change. It is a potentiometer. This one is a potentiometer, 10 meter long wire arranged on this potentiometer. Okay, and this one is a cell. देखिए this one is a cell, ये सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें निकालना है। इसी के पैरेलल में एक की K2 लगाया और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया और इसी जगह पर एक हमने गैल्वेनोमीटर लगाया। फिर हमारे N1 N2 टर्मिनल्स वही जॉकी के टर्मिनल्स आते हैं जो नल पॉइंट है। एक चीज और मैं आपको बता दूं जो जनरली बुक्स में नहीं है, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाने से पहले जितने भी पोटेंशियोमीटर के केस हैं वहां पर एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं जिसमें से 2000 ओम 3000 ओम का रेजिस्टेंस निकालते हैं। मींस 2000 ओम 3000 ओम निकाल देते हैं। कितना रेजिस्टेंस हम अप्लाई करते हैं उसका रीजन क्या है, अगर हमारा करंट फ्लो करेगा तो ये गैल्वेनोमीटर का नीडल डैमेज हो सकता है, ये कॉइल बर्न हो सकती है। इसको बचाने के लिए हम ये इसके सीरीज में ये रेजिस्टेंस लगाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस रेजिस्टेंस बॉक्स। नेक्स्ट, अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द सर्किट डायग्राम। चेक कैसे करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्लोज द की K1 को क्लोज किया, इस की को हमने क्लोज किया एंड देन वी टच द जॉकी, मींस ओपन द की K2 को ओपन करेंगे, टच द जॉकी एट पॉइंट A, नोट डाउन द डिफ्लेक्शन इन वन डायरेक्शन। यहाँ पे डिफ्लेक्शन आपका एक डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर ने दिखा दिया। अगेन वी क्लोज द की K2 and take out some resistance from resistance box, 0.1 ohm 0.2 ohm whatever means you can dig out from this resistance box. Then again you touch the jockey at point A, again it shows the deflection in one direction. नेक्स्ट थिंग हमारा ये है कि जब हम ए पॉइंट पे हम जॉकी को टच कर रहे हैं, जैसे अभी फर्स्ट केस में हमने बताया कि जब K2 हमारा खुला हुआ है, ए पॉइंट पे टच किया एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देगा, सी पॉइंट पे टच करेंगे तो ये दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देगा, अपोजिट डायरेक्शन में हमारा डिफ्लेक्शन होगा। तो इसका मतलब ये हमारा ये वाला पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट ये करेक्ट है। सेकेंड वाले पार्ट को इसको क्लोज करके करेंगे, K2 को क्लोज करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकालेंगे, 0.2 ओम 0.1 ओम ऐसा रेजिस्टेंस निकालेंगे। फिर दोबारा से हम जॉकी को ए टर्मिनल से टच करेंगे, इट शोज द डिफ्लेक्शन इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में देगा। फिर दोबारा से हम जॉकी को हम सी टर्मिनल से टच करेंगे, ये डिफ्लेक्शन दूसरे डायरेक्शन में देगा। इट मींस आवर सर्किट डायग्राम इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है, हमें इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। Now we open the key K2 को ओपन करेंगे and now there is a cell in a circuit and slide the jockey along this wire. We will get a point, means suppose it is a point N1 at which gallanometer shows deflection, null deflection. It means potential difference that is equal to AN1, that is directly proportional to L1. Here there is no resistance, in that case there is no resistance, so this potential difference is equal to the EMF of cell. तो इसे लिख सकते हैं E and that is equal to VAN1 and it is equal to, we can write KL1. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, KL1. Next second part मेरा यहाँ पर, close the key K2 and dig out some resistance from this resistance box. Suppose it is a 0.2 ohm. 0.2 ohm or 0.1 ohm, like that we take out the resistance. Again we slide the jockey along this wire, we will get a point at which gallanometer shows null deflection. Suppose it is a N2.
So the potential difference across this one is equal to VAN2. VAN2 is directly proportional to L2. And here we can write it that is VAN2 and that is equal to KL. And we can write this one is equal to V लिख लेते हैं for our convenience. V is equal to KL2. And that is the equation number 2 and it is the equation number 1. ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर हमारा 1 हो गया. अब हमारा एक इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हमारा फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हमारा फॉर्मूला था R इज इक्वल टू E on V minus 1 and this one multiplied by capital R. ये हमने फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं पहले. ठीक है, अब देखिए यहां पर स्मॉल r इज इक्वल टू E की वैल्यू रख दीजिए दैट इज इक्वल टू KL1 और V की वैल्यू रख दीजिए KL2 और दिस वन -1 और R की वैल्यू आपने रख दीजिए दैट इज इक्वल टू 0.1 0.2 जो भी आपने निकाली थी वो रेजिस्टेंस बॉक्स से वो हो जाएगी. तो इट इज इक्वल टू R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 -1 एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाई R. ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए. और इसी के साथ हमारा एप्लीकेशन वाला पार्ट इसका ओवर होता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा दूसरा पार्ट इसमें अब नेक्स्ट टॉपिक बचा है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. तो उसको भी हम शुरू करते हैं. वैसे मैंने वो पढ़ा दिया था आपको, फिर भी हम दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो हमें एक बार फ्रेश अप करना है पूरा. चलिए नेक्स्ट इसके लिए मैं next our topic that is heating effect of current. Effect of current. Just you recall the things. Heating effect of current. देखिए, this one is the conductor. Here I have conductor. Across the conductor we apply the electric field. We apply the electric field. Sorry, negative. Then electron accelerate across this conductor, and by which this conductor becomes hot. That is called heating effect of current. Heating effect of current को अगर हम और डिफाइन करते हैं, when current flows through a conductor or resistor, then the heating of a conductor is called heating effect of current. अब हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर, मान लीजिए ये कोई भी रजिस्टर कह सकते हैं, कंडक्टर कह सकते हैं, ये ए पॉइंट कह दिया, ये बी पॉइंट कह दिया. इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, जैसे एक रजिस्टर ले लिया और दिस वन इज अ ए एंड बी एंड इट इज कनेक्टेड बाय ए बैटरी. ये एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने. ठीक है, आई करंट फ्लो करेगा, Q चार्ज फ्लो करेगा, तो Q इज इक्वल टू IT टाइम T टाइम में ये चार्ज फ्लो कर जाएगा. जनरली हम डायरेक्टली लिख देते हैं. डायरेक्टली क्या लिख देते हैं? द हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. I स्क्वायर RT हमारा फॉर्मूला याद होगा आपको. तो दैट इज इक्वल टू H इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द resistance of the conductor. H is also directly proportional to the time. तो ये इसे कंबाइन करके हम लिख सकते हैं H is equal to I स्क्वायर RT. और इसके दूसरे फॉर्मूले यहाँ से अगर हम R को एलिमिनेट कर देंगे तो यहाँ पर VIT आ जाएगा. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V स्क्वायर T अपॉन R. भाई आई को इसमें हमारा V नहीं है, इसमें हमारा R नहीं है, इसमें हमारा
आई नहीं है। तो ये हमारे सारे फॉर्मूले किसके हैं, हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर और रजिस्टर। बट यहाँ पर जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, जूल आएगी। ये यूनिट क्या आएगी, जूल आएगी। अगर इसे कैलोरी में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4.18 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4.18 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 4.18 से डिवाइड करना पड़ेगा। देन दिस यूनिट इट इज इक्वल टू, ये फिर जूल नहीं रहेगा, फिर तो हमारा यहाँ पर कैलोरी में कन्वर्ट। नेक्स्ट हमारा दूसरा पार्ट आता है, सेकेंड पार्ट, इसी में आगे बढ़ते हैं हम। इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, दैट इज रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क डन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। so that is equal to P is equal to W over T हमारा आ जाएगा, और W that is equal to H over T। W क्या है, वर्क डन, और हीट प्रोड्यूस किसकी वजह से है, वर्क डन की वजह से है भाई। हीट प्रोड्यूस भी तो किसकी वजह से है, वर्क डन की वजह से है। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमारे इसके फॉर्मूले आ जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो देखिए आई स्क्वायर आर एंड दैट इज इक्वल टू वी आई and that is equal to V square over R, and SI unit of electrical power that is equal to watt, और 1 watt is equal to क्या होता है, that is equal to जूल सेकेंड। ये तो क्लास 9th में हम पढ़ते चले आ रहे हैं, दैट इज जूल सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेकेंड पार्ट होता है, इसकी कुछ बिगर यूनिट्स भी होती हैं पावर की। 1 किलोवाट that is equal to 10 to the power 3 watt, 1 megawatt is equal to 10 to the power 6 watt, and 1 horsepower is equal to, that is equal to 746 watt। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट हमारा बात आती है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी आपने क्लास 9th में पढ़ा था। तो कॉमर्शियल यूनिट हमारी क्या थी, 1 किलोवाट, 1 kilowatt hour, that is commercial unit, that is 1 kilowatt hour, it is also known as the 1 unit। इसको यूनिट भी कहते हैं, घरों में जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट्स में आता है। तो ये यूनिट 1 unit is equal to 1 kilowatt hour and it is equal to 3.6 into 10 to the power 6, 10 to the power 6 watt। ठीक है, ये चीज मैंने एक बार पढ़ा चुका हूं और इसके नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। तो इसमें बहुत ज्यादा चीज नहीं है क्योंकि क्लास 10th में ही पढ़ा है, बड़ी सिंपल चीजें हैं। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट हमारा इसका है, सेकेंड पार्ट है पावर कंजम्पशन इन कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस। देखिए थोड़ा सा ये टॉपिक आपका ऐसा है, इसमें क्वेश्चंस आते हैं, पावर कंजम्पशन इन कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस। भाई जैसे हमारे 2 इलेक्ट्रिक हीटर हैं, ये अगर सीरीज में लगा दें, ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रिक हीटर हैं सीरीज में लगा दिए तो व्हाट इज द पावर कंजम्पशन, अगर उन्हें पैरेलल में लगा देंगे तो हमारा पावर कंजम्पशन क्या होगा। अब यहाँ पर वही चीज हम आपको लेके चल रहे हैं। देखिए ये एक बल्ब ले लिया मैंने, ये पहले फर्स्ट केस में ले रहा हूँ पावर कंजम्पशन इन कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस, फर्स्ट ले रहा हूँ मैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखिए ये मैंने एक बल्ब ले लिया और इस बल्ब को मैंने यहां से ये पावर सोर्स से कनेक्ट कर दिया, वी इसका हमने ले लिया, एक बल्ब और ले लिया, ये इसका
एक बल्ब और ले लेते हैं। चलिए, अब इन सबको सीरीज में कनेक्ट हो गए हमारे, और यहां से सीरीज में हो गए, थोड़ा सा शार्प। ठीक है, अब देखिए इस जगह पर इसकी पावर अलग अलग है, पावर एन। यहाँ पर मान लीजिए इसकी पावर P1 है, इसकी पावर P2 है, और इसकी पावर P3 है। भाई बल्ब के ऊपर जो प्रिंटेड है वो आप लिख देंगे, उसके ऊपर वोल्ट भी लिखी हुई होती है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ सेम वोल्ट के ले लेते हैं, जैसे मान लो 240 वोल्ट, सॉरी, जो 240 वोल्ट का ले लिया हमने, या जो भी आपका वोल्टेज दे रखा है वो ले सकते हैं। यहाँ पर वोल्टेज में ले लेता हूँ V वोल्ट ले लिया। ठीक है, हमने कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट एंड V वोल्ट यहाँ पर ले लिया। ठीक है, अब इनको सेम वोल्टेज हमने अप्लाई, सेम वोल्टेज के बल्ब हैं और इनकी पावर लेकिन डिफरेंट है। अब सबसे पहले इनका रेजिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर P1। सिमिलरली R2 इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P2। ऐसे ही हम R3 निकाल लेंगे और ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P3। और इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मींस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो बेटा हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 1 अपॉन P इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3 एंड सो। तो ये हमारा फॉर्मूला आता है। अगर n हमारे सेल्स हैं, सॉरी n बल्ब्स लगे हुए हैं, तो P इफेक्टिव इजिकल टू आ जाएगा फॉर n के लिए, P इफेक्टिव इजिकल टू आ जाएगा P अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और है, द करेंट थ्रू ईच बल्ब विल बी सेम। करंट तो हमारे सेम रहेगा, लेकिन करंट कितना सेम रहेगा? I इजिकल टू V हमारा कॉमन था, और यहां पर सीधे से लिख दीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, यही होगा भाई। V इजकल टू IR होता है, तो ये हम लिख सकते हैं। अगर हमें द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब निकालनी है, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब निकालनी है, तो इसे में P1 डैश निकाल देता, ये हो जाएगा देखिए I स्क्वायर R1, और यहां हो जाएगा दैट इज इक्वल टू P2 डैश इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू, ये ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब हो जाएगी, दैट इज I स्क्वायर, और ये हो जाएगा R2। भाई R1 R2 निकालें, एंड नेक्स्ट P3 डैश इज इक्वल टू, दैट इज I स्क्वायर R3। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर पार्ट आ गया। इसी चीज को अगर हमें इससे रेजिस्टेंस के टर्म्स में आप देखेंगे, वही यहाँ पर एक चीज देखेंगे, इस चीज को भले ही आप नोट कर सकते हैं, द बल्ब ऑफ लोएस्ट पावर या वोल्टेज विल हैव अ मैक्सिमम रेजिस्टेंस। भाई जब आप इन सब की वैल्यू निकालिए, P1 डैश है बेटा, एक बात याद रखिए, P1 डैश है, P2 डैश है, और जब आप इसको निकालेंगे तो यहाँ ध्यान रखिए, लोएस्ट पावर means that is what is means, जितने लोएस्ट वॉट की बात करेंगे, यहां पर इसका क्या हुआ, विल हैव अ मैक्सिमम रेजिस्टेंस। एंड जब मैक्सिमम रेजिस्टेंस है तो इसका क्या हुआ, मैक्सिमम ब्राइटनेस होगी, मैक्सिमम ब्राइटनेस, दैट इज मैक्सिमम ब्राइटनेस। क्लियर, यहां पर इसको लिख सकते हैं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P। क्लियर, नेक्स्ट हमारा सेकेंड केस आता है हमारा, दीज आर इफ दीज बल्ब्स इन अ
पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, नेक्स्ट के लिए आई विल टेक 5 मिनट मोर, ठीक है। इफ दीज बल्ब्स, सर यस यस, सर आपने वो वोल्टेज क्यों सेम लिया था? क्या क्या क्या, इससे पहले वाले पार्ट में हाँ आपने सीरीज में भी वोल्टेज सेम। वोल्टेज, हाँ हाँ हाँ, बल्ब पे जो वोल्टेज प्रिंट है वो कांस्टेंट है बेटा, जो बल्ब मैंने लिए हैं उन पे वोल्टेज कांस्टेंट है, प्रिंट है। ये आपने, हाँ सर, ये हमने एज्यूम किया है। एज्यूम क्या, जो बल्ब आप मार्केट से खरीद के लाए उन पे पावर और वोल्टेज उस पर प्रिंटेड है, तो वही अच्छा लिए। हाँ, मैं ऐसा नहीं होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम हो गया। जो बल्ब मैं बाजार से परचेज करके लाया था उन पे लिखा हुआ है, ठीक है भाई, 100 वॉट का बल्ब है, उसमें कितने है, 240 वोल्ट तक वो बियर कर सकता है, वो चीज है। ओके, नेक्स्ट केस, कॉम्बिनेशन मीन्स व्हेन अप्लायंसेस कनेक्टेड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हमारा केस है पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगेन हियर इट इज अ बल्ब B1, बल्ब B1 है, ये बल्ब B2 है मेरा, एंड दीज आर कनेक्टेड टू अ सोर्स, मीन्स दैट इज अ सोर्स से कनेक्टेड है, यहाँ से V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया, एंड ये बल्ब V1 V2, और पावर ऑफ दिस बल्ब इज इक्वल टू P1 एंड इट इज वोल्टेज V, and power of this one bulb that is equal to P2 and it is V. Here again we determine the resistance of this one, then R1 is equal to V square upon P1, and similarly R2 is equal to V square upon P2, and so on and so on. In parallel combination, the effective resistance R effective that is equal to means 1 upon R1 plus 1 upon R2 and so on. And now we simplify it and put their values. So we will get P is equal to P1 plus P2 and P3 and so on. Clear? So यहाँ पर if there are n bulbs, n bulbs के लिए P इफेक्टिव हो जाएगा, that is equal to NP हो जाएगा, it is equal to NP. And next brightness part, for a brightness part that is equal to P1 डैश कर देता हूं, इसे मैं P1 डैश कर देता हूं, दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R1, एंड नेक्स्ट लिख सकते हैं ऐसे ही P2 डैश करके लिख सकते हैं, दैट इज V स्क्वायर अपॉन R2 एंड सो ऑन। तो हाईएस्ट पावर मिनिमम रेजिस्टेंस का यहाँ पर कंसेप्ट आता है, ठीक है। एक सेकेंड,